So welcome dear. This is the new topic which we have taken from the fluid mechanics, that is fluid flow over submerged bodies. So this is the topic actually बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑल्सो है. इंटरेस्टिंग इसलिए है बिकॉज we will observe lot of problems in our daily routine life where we observe that either the body is moving in the fluid or the fluid is flowing over the body, or the lot of you can say both, they are moving with their relative velocities. Suppose there are a lot of examples there. जो हमारी daily routine life में there are a lot of examples there. As we are driving the car on the road, you will see there that car is moving in the fluid. Fluid means, what is the fluid there? That is air. Or any automobile vehicle which is moving. Moreover, you have seen that kite, जो फेस्टिवल्स वगैरह आते हैं जब बच्चे काइट्स वगैरह फ्लाई करते हैं, उसमें भी we will see that kites, they are flying in the air, or you can say that of kites, they are moving in the air and the forces are acting on the kite. You understand? Likewise, in case of the aeroplanes, you have seen that aeroplane is moving in the air, in the atmosphere, in the air, airplane is moving, and so the forces are acting on the aeroplane. That is, you can say that the air is producing the forces, or the forces are acting on the airplane like this. So this is a very important one because there are a number of problems which we can see in our daily life, and in engineering field also there are number of problems which actually we encountered with those problems, that fluid is flowing around the bodies. You understand? So there are a number of the problems. Either the body is moving in the fluid, or the fluid is flowing over the body or around the body like this. You understand? So you can say that there are the three type of the conditions there arises. Three types of the conditions क्या होंगी? Either the body is moving in the fluid. This is the one condition. Second is either the fluid is flowing around the body or over the body. First, I told you that the body is moving over the stationary fluid. Large stationary fluid is there and body is moving over that. Moreover, we have seen that both the fluid and bodies, they are moving with their relative velocities, or you can say they are having their own different type of the velocities. तो वो ये तीनों चीज़ें आप यू विल एनकाउंटर्ड इन योर लाइफ इन इंजीनियरिंग प्रैक्टिस आल्सो. फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने आपको दिया एग्जांपल्स दिया अभी, मोशंस ऑफ ए वेरी स्मॉल पार्टिकल्स इन द एयर, दैट इज इन द एयर और द फ्लूइड, वाटर यू कैन से, डस्ट पार्टिकल, दे आर मूविंग इन द एयर, सैंड पार्टिकल्स, they are moving in the water. This is the example. Tiny sand waters or sand particles and the dust particles, they are moving in the air. This is the one example. And if we will talk about the large material, these are the small objects. अगर large object की बात करें, so we can see that we have observed that the ships, आप ship का example ले लीजिए, they are moving in the sea
स्टेशनरी फ्लूइड आप कह सकते हैं, स्टेशनरी वाटर, दे आर मूविंग इन दैट aeroplane, as I have given the example, that is moving in the air. Automobiles, all type of them automobiles, car, scooter, truck, everybody, that is also moving in the air, moving in the fluid, you understand. Moreover, we have seen that there are the buildings, bridges, all type of the structures, they are all encountered by the moving fluid, means air. तो जितने भी आप स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे बिल्डिंग्स हैं, ब्रिजेस हैं, और all type of the structures, no doubt they are stationary, but the fluid is moving over them, around them, and fluid means in shape of what? That is air. तो जहाँ से अब इस टॉपिक को हम जो पढ़ना चाहते हैं, सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस टॉपिक, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक. यू नो दैट इन द एनालिसिस ऑफ द डिज़ाइन ऑफ ऑल दीज थिंग्स, जितनी भी ये चीज़ें हैं, चाहे शिप का एनालिसिस ले लीजिए डिज़ाइन में, एरोप्लेन का डिज़ाइन ले लीजिए, buildings, structures, all types of structures, building, bridges वगैरह. So in the analysis of these, in the analysis of the design of these structures, we have a very important thing to find out there, because in all these cases, what happens that force is acting by the fluid on the body. You understand? फोर्सेस जो हैं बॉडी के ऊपर एक्ट करेंगी, एंड दीज फोर्सेस आर अप्लाइड बाय द फ्लूइड. आइदर द बॉडी इज इन मोशन एंड फ्लूइड इज स्टेशनरी, देन आल्सो द फोर्स इज अप्लाइड बाय द फ्लूइड ऑन द बॉडी, और बॉडी इज मोशन एंड फ्लूइड इज स्टेशनरी. ये तो मैंने एग्जाम्पल दिया. नाउ द सेकंड थिंग इज दैट द बॉडी इज स्टेशनरी and fluid is flowing or moving. In that case also, forces will act on the body. And in the third conditions, if both they are moving to each other with their relative velocities, if both they are moving with their relative velocities, or you can say that different velocities, in that case also, forces will act on the body, and these forces will be applied by the fluid. You understand? So you can understand here that in that case, forces are very important parameter here. In all these cases, we will see that forces are acting either on the body, by the fluid on the body, either it is moving, it is stationary, or both they are moving. So in this topic, if we have to design, you can say analysis of the designs of the various type of the thing which various type of the bodies which we have discussed here, either aeroplane है, vehicles हैं, आपका शिप्स हैं, इवन द बिल्डिंग्स, स्ट्रक्चर्स, ब्रिजेस. तो इन सभी का एनालिसिस करने के लिए हमें क्या करना है, हमें फोर्सेस को कैलकुलेट करते हैं. वी हैव टू कैलकुलेट द फोर्सेस, कि इनका कितना इफेक्ट होगा, इनका कितना मैग्नीट्यूड है, क्या हमें इनका इफेक्ट जब हम डिज़ाइन करें किसी भी बॉडी को, तो वी हैव टू कंसिडर इट्स इफेक्ट ऑल्सो इन द डिज़ाइन. कि अगर आपका इतना वेलोसिटी से कोई चीज़ मूव करता है, फ्लूइड मूव करता है, उस वक्त जो फोर्सेस उसके ऊपर एक्ट करेंगी, उनका इफेक्ट कितना होगा, उनका मैग्नीट्यूड कितना होगा. यू अंडरस्टैंड?
जैसे मैंने आपको बताया, देयर आर 100 ऑफ द प्रॉब्लम्स विच वी विल सी इन आवर डेली लाइफ. जैसे आई हैव गिवन द एग्जाम्पल ऑफ द फ्लाइंग काइट्स आल्सो. काइट को हम फ्लाई करते हैं. ए मैन दैट जंप्स फ्रॉम द पैराशूट, प्लेन से वो जंप करता है बाय द पैराशूट. द फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन द बॉडी. अब वो फोर्सेस देयर द डिफरेंट टाइप की हो सकती हैं. वेदर दिस इज द ड्रैग फोर्स और द लिफ्ट फोर्स, दैट डिपेंड्स दैट हाउ द फोर्स इज एक्टिंग ऑन दैट. इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ड्रैग फोर्स क्या है, आपका लिफ्ट फोर्स क्या है. बिकॉज ये जो फोर्सेस हमारी बॉडी के ऊपर अप्लाई करेंगी, दे विल गिव द इफेक्ट ऑफ द टू थिंग्स. एक तो ड्रैग फोर्स का इफेक्ट देंगी और एक आपका लिफ्ट फोर्स का इफेक्ट देंगी. अब ड्रैग फोर्स का इफेक्ट हमें कब और कैसे मिलेगा, एंड लिफ्ट फोर्स जो बॉडी के ऊपर लगेगी उसका हमें इफेक्ट कैसे मिलेगा, दैट वी विल अंडरस्टैंड, वो कैसे मिलेगा. सो बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द ड्रैग फोर्स एंड द लिफ्ट फोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल अंडरस्टैंड फ्रंटल एरिया. कि फ्रंटल एरिया, व्हाट इज योर फ्रंटल एरिया, यू अंडरस्टैंड. तो आपका फ्रंटल एरिया हम किसे कहते हैं, और प्लेनफॉर्म एरिया हम किसे कहते हैं, यू अंडरस्टैंड. सो फ्रंटल एरिया, that is denoted by AF. So frontal area, you can say that ये आपका बॉडी है, this is the body, you understand. So you can say that a fluid is flowing, this is your body, और ये फ्लूइड आपका फ्लो कर रहा है. इसका जो वेलोसिटी है, स्टीम वेलोसिटी इसका है u इनफिनाइट, फ्लूइड फ्लो कर रहा है. अब फ्रंटल एरिया, व्हाट इज योर दिस फ्रंटल एरिया. This is your frontal area, right? और J वाला, this is called the planform area. This is called the planform area, and this is denoted by AP. You understand? So frontal area, that is denoted by AF. What is your frontal area? The projection of the plane, the area of projection plane along so frontal area, that is the area of projection, the area of projection plane normal. प्रोजेक्शन प्लेन का, किसी बॉडी का जो प्रोजेक्शन प्लेन है उसका एरिया अगर नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन होगा, नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ direction, it is, if it is normal to the flow of direction,
तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्रंटल एरिया। द एरिया ऑफ प्रोजेक्शन प्लेन नॉर्मल टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड द फ्रंटल एरिया। और आपका प्लेन फॉर्म एरिया, प्लेन फॉर्म एरिया क्या है? सो व्हाट इज योर प्लेन फॉर्म एरिया? द एरिया ऑफ द प्रोजेक्शन प्लेन, इसका जो एरिया होगा, द एरिया ऑफ प्रोजेक्शन, द एरिया ऑफ प्रोजेक्शन प्लेन along the direction of flow, right, along the direction of flow, along the direction of flow। प्रोजेक्शन प्लेन का एरिया जो आपका द एरिया प्रोजेक्शन प्लेन along the direction of flow, this is called the plane form area. You understand? This is what they say, this is called the plane form area. Now why I am discussing about this frontal area of a body and plane form area of a body? बिकॉज दीज एरियाज जो मैं जहाँ पे फ्रंटल एरिया और प्लेन फॉर्म एरिया के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, सो दीज एरिया प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन कैलकुलेटिंग द ड्रैग फोर्स और लिफ्ट फोर्स। यू अंडरस्टैंड? इफ वी हैव टू कैलकुलेट द ड्रैग फोर्स, अंडरस्टैंड, इफ आई हैव टू कैलकुलेट द ड्रैग फोर्स, देन विच एरिया वी विल कंसिडर? वी विल कंसिडर द फ्रंटल एरिया। अगर हमें ड्रैग फोर्स को कैलकुलेट करना है तो कौन सा एरिया हम कंसिडर करेंगे? फ्रंटल एरिया। देखिए, ड्रैग फोर्स दैट इज इन द एक्स डायरेक्शन। इफ सपोज ए कार इज मूविंग लाइक दिस ऑन द रोड and the force which is applied by the wind or the air in the x direction, that force will produce the drag resistance, and in order to overcome the drag resistance we have to apply the drag force। वो जो overcome करेगी उस resistance को, वो जो force होगी that is equal to the drag force, and the drag force that is in the x direction। अब देखिए x direction में, suppose this is your x direction में, ये आपका x direction, तो डेफिनेटली एरिया आपका क्या होगा? एरिया आपका ये होना चाहिए, अगर आपका x डायरेक्शन में कोई चीज़ है, सपोज दिस इज x डायरेक्शन में, तो ये जहाँ पे एक्ट करेगा तभी तो फोर्स x डायरेक्शन में मूव करेगी ये। सो दिस इज योर फ्रंटल एरिया, राइट? सो यू कैन से दैट अ फ्रंटल एरिया इज हैविंग इट्स ओन इम्पोर्टेंस, मीन्स व्हेन वी हैव टू कैलकुलेट द ड्रैग फोर्स we use the frontal area of the body. And what is the frontal area? The area of the projection of the plane normal to the flow direction, that is called the frontal area. In case of lift force, तो lift force के केस में if we have to calculate the lift force, then we will take the consider the planform area। तो आप कह सकते हैं ड्रैग फोर्स जो आपका है, ड्रैग फोर्स एफ डी मीन्स ये किसके ऊपर, इसमें कौन सा एरिया हम करेंगे? फ्रंटल एरिया, विच इज डिनोटेड बाय दिस। और अगर लिफ्ट फोर्स का बात करें तो लिफ्ट फोर्स plane form area means the projection of the area projection plane along the direction of flow। You understand? तो एक चीज़ तो आपको ये रखना है माइंड में, because when we will calculate the problems
एप्लीकेशंस में हम जब प्रॉब्लम्स हमें जब दिया जाता है, जिसे हम न्यूमेरिकल्स भी कहते हैं, तो उसमें अगर इफ़ यू हैव टू कैलकुलेट द ड्रैग फोर्स, देन यू हैव टू फाइंड द फ्रंटल एरिया ऑफ द गिवन ऑब्जेक्ट। आपको क्या करना है उस ऑब्जेक्ट का, देन यू हैव टू फाइंड द फ्रंटल एरिया। एंड इफ यू हैव टू कैलकुलेट द लिफ्ट फोर्स ऑफ सर्टन बॉडी, देन यू हैव टू फाइंड द प्लेटफॉर्म एरिया। यू अंडरस्टैंड? सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द एरियाज जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। यू अंडरस्टैंड दिस? सो दिस इज द इंट्रोडक्शन पार्ट आई एम टेकिंग हियर। Now I think you have understood it well. So what is fluid flow over submerged bodies? Means in your daily life you have seen in the number of engineering fields, we have seen that fluid is flowing around the submerged body, right? Or the body is flowing over the fluid, or both they are moving, or with their respective velocities. You understand? In all these cases, what happens that जो अपने दिमाग में अपने माइंड में जो चीज़ रखनी है, in all the cases forces will act on the body by the fluid. You understand? फ्लूइड जो है either चाहे वो बॉडी मूव कर रही है फ्लूइड में, स्टेशनरी फ्लूइड में, जहाँ फ्लूइड मूव कर रहा है बॉडी के अराउंड और ओवर, और दोनों मूव कर रहे हैं, इन ऑल द केसेस व्हाट हैपन्स दैट फोर्सेस विल एक्ट ऑन द बॉडीज। फोर्सेस जो है वो बॉडी के ऊपर एक्ट करेंगी, और वही फोर्सेस जो आगे जाके हम अभी बताएंगे, आपको डिफाइन किया है कि देयर आर द टू टाइप्स ऑफ द फोर्सेस। मीन्स एक को हम ड्रैग फोर्स बोलेंगे, एक को हम लिफ्ट फोर्स बोलेंगे। सम बॉडीज they will attain both type of the forces, as I told you that in case of the aeroplane which is flying in the air, वहाँ पे drag force भी होगा, lift force भी होगा। as the kite is flying in the air, उसके ऊपर drag force भी act करेगा, lift force भी act करेगा। but there are certain forces, there are certain bodies, as automobiles, it is moving on the road, or ship that is moving in the sea. In that case, we will mostly see that the drag force is acting on them. You understand? Only one component of the force, that is the drag force, that is acting on the body, but the lift force is not acting on that. You understand? So this is the introduction part of this, and as I have given a lot of examples there. And importance भी मैंने आपको बताया कि what is the importance of this topic means if we have to design or in the analysis of the designs of the bridges, buildings, structures, vehicles, all these things, हमें we have to find the effect of the forces on the body. Means we have to calculate the effect of the forces on the body. उसके लिए हमें फोर्सेस का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि इस बॉडी के ऊपर कौन सी फोर्स एक्ट करेगी, चाहे वो ड्रैग फोर्स एक्ट करेगी, चाहे वो लिफ्ट फोर्स भी एक्ट करेगी, और दोनों फोर्सेस एक्ट करेंगी। तो ये चीज़ें जो हैं आपके एनालिसिस ऑफ द डिज़ाइन में जब किसी बॉडी का आप करेंगे, सो वी विल कंसिडर ऑल दिस थिंग्स इनटू, हम इन सभी चीज़ों को कंसिडरेशन में लेंगे। यू अंडरस्टैंड दिस? सो दिस इज द topic which I said that this is a very that topic जो हम जनरली अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, बड़ी चीज़ें देखते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ द टॉपिक है। इम्पॉर्टेंट तो है ही है, बट दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ द टॉपिक, और इसमें आपको बहुत इंटरेस्ट क्रिएट होगा। यू अंडरस्टैंड? इसमें हम काफ़ी डिटेल में, काफ़ी डेप्थ में इसका एनालिसिस करेंगे, हर चीज़ को हम पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। अदरवाइज सामवेयर क्या है कि उसका फार्मूला ड्राइव करते हैं लोग, और फार्मूला ड्राइव करके उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स देते हैं और कहते हैं कि यहीं तक चीज़ें जो है आपके एग्ज़ाम में आ सकती हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। बट एज यू नो दैट मैं जब भी कोई टॉपिक लूँगा उसको कंप्लीट डेप्थ में जितना मैं कर सकता हूँ उसको पूरा डेप्थ में हम एक्सप्लेन करेंगे।
इसलिए इसके जो लेक्चर होंगे, इसमें लेक्चर मिनिमम 5 to 6 लेक्चर्स मैं दूंगा, यू अंडरस्टैंड। इसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ड्रैग फोर्स ऑन द सिलेंडर्स, ड्रैग फोर्स ऑन द स्फीयर के ऊपर क्या है, हर चीज़ इस टॉपिक में जो जो भी चीज़ें आएंगी वो सारी डिस्कस करेंगे, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेल, यू अंडरस्टैंड दिस। तो जहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं, इंट्रोडक्शन पार्ट इज क्लियर। अब आपका इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर हो गया, यू अंडरस्टैंड। अब देखिए, हम एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। Let us say that this is a body, कोई body है, right? And a real fluid flowing is here with the this body is kept held stationary in the moving fluid which is submerged here. So इसका जो velocity है, I say this is the u infinite, right? So you can say that consider a body that we have considered the body which is held stationary in the fluid which is flowing, or you can say that the steam velocity of the fluid flowing, that is I am considering the real fluid here. तो इसका जो steam velocity है, that is u infinite, and I have kept the body stationary like this, you understand. Now the fluid is acting on the body, you understand this. Let us I will consider very small element. Suppose this is your small element, ये जो रेड कलर में मैंने शो किया है, this is your small element, इसका एरिया स्मॉल है, DA है, you understand. इसको हम बिगर करके बनाएंगे. So small element I have taken here, fluid is flowing over the body, you understand. So this fluid which is flowing with the stream velocity u infinite, this is the real fluid. Naturally the force is acting on this small element dA, जिसका एरिया क्या है, d है, dA, and that is on the surface of the body, you understand. तो एक small element I have considered here on the body, जिसका एरिया is small area, very small area I have taken dA, and इस पॉइंट के ऊपर मैं कहता हूँ कि फ्लूइड जो है, रियल फ्लूइड फ्लो कर रहा है विद द स्ट्रीम वेलोसिटी यू इनफिनाइट। तो डेफिनेटली जब फ्लूइड जो है इसके ऊपर एक्ट करेगा तो क्या होगा, एक फोर्स जहाँ पे प्रोड्यूस होगी, फोर्स प्रोड्यूस होगी, यू अंडरस्टैंड। तो मैं इसको एक जी आपका एलिमेंट है, सपोज मैं इसको एनलार्ज कर लेता हूँ, यू अंडरस्टैंड दिस। एलिमेंट इज लाइक दिस, तो मैं एक इनलार्ज कर लेता हूँ, दिस इज द एलिमेंट डी ए, यू अंडरस्टैंड, दिस इज द एलिमेंट डी ए। आई से इट मेक्स एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, यू अंडरस्टैंड। अब देखिए फोर्स इसके ऊपर एक्ट कर रही है, यू अंडरस्टैंड, द फोर्स इज एक्टिंग ऑन द स्मॉल एलिमेंट, राइट।
So element is like this. So you can say that, इसमें लिख लेते हैं यहाँ पे, ये जो स्मॉल एलिमेंट डी ए है, स्मॉल एलिमेंट डी ए, so on small element, on small element dA, two forces are acting on the small element dA, right? तो इसमें दो फोर्सेस एक्ट करेंगी, टू फोर्सेस acting on small element D, right? दो फोर्सेस इसमें एक्ट करेंगी, एक करेगी आपकी shear फोर्स, क्योंकि जहां पे shear स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, राइट, क्या होगा, shear स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, तो shear स्ट्रेस जो प्रोड्यूस होगा उससे एक फोर्स डेवलप होगी, दैट इज टाउ इनटू डी ए, और इसका जो डायरेक्शन होगा, दिस इज द मैग्नीट्यूड, और जो डायरेक्शन होगा इसको हम टेंजेंशियल फोर्स भी कहते हैं, shear फोर्स और द टेंजेंशियल फोर्स, और जो इसका डायरेक्शन होगा दैट इज अलोंग द एलिमेंट डी ए। तो अलोंग द एलिमेंट डी ए इसका डायरेक्शन होगा, इस तरीके से जो एक फोर्स एक्ट होगी दैट इज टाउ डी ए, यू अंडरस्टैंड, टाउ डी ए, दिस इज योर shear फोर्स, मीन्स ये आपका टेंजेंशियल फोर्स भी आप लिख सकते हैं ऐसे, दैट इज कॉल्ड द टेंजेंशियल फोर्स बिकॉज दिस इज अलोंग द टेंजेंट ऑफ दिस डी ए, टेंजेंशियल फोर्स, राइट। और सेकंड जो आपका फोर्स प्रोड्यूस होगा वो आपका क्या होगा, प्रेशर फोर्स दैट विल प्रोड्यूस, जस्ट लाइक दिस। सो दूसरा प्रेशर फोर्स प्रोड्यूस होगा बिकॉज द फ्लूइड विच इज फ्लोइंग ओवर द स्मॉल एलिमेंट, डेफिनेटली it will create the pressure on the small element P. If P is the pressure on the small element that is developed by the flowing fluid and dA is the area of the small element, then the pressure force small element के ऊपर क्या होगा, P into dA, और जैसे आपको बताया tau into dA that is the shear force, shear stress will produce on this because as there is a velocity gradient there, viscosity है, real fluid है, और जब real fluid उसमें viscous flow है तो क्या है, वो shear stress प्रोड्यूस करता है, यू अंडरस्टैंड, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो shear stress वो प्रोड्यूस करेगा, और shear stress ऑन द एलिमेंट DA के ऊपर जब एक्ट होगा तो उससे क्या होगा, shear force प्रोड्यूस होगी, दैट इज टाउ इनटू DA। So you can say that two types of the forces are acting on the small element, that is PDA, that is the pressure force, लिख लेते हैं, PDA क्या होगा, that is pressure force, and this you can say that is the internal compressive force also, इसको हम external normal compressive force, right? So pressure force जहाँ external normal compressive force, because the pressure force always act
normal to the surface, external normal compressive force, right? और pressure force क्या प्रोड्यूस होगा? P is the pressure and dEA is the area. You understand? So here we have seen that two forces are acting on the body or on the small element which I have taken on the surface of the body. जहाँ से what we got to know means when a body is kept or held stationary along the moving fluid, तो क्या होगा कि उस बॉडी के ऊपर दो फोर्सेस एक्ट करेंगी. एक फोर्स होगी आपकी शेयर फोर्स और सेकंड फोर्स जो प्रोड्यूस करेगी दैट इज ड्यू टू द प्रेशर ऑफ द फ्लूइड एंड दैट फोर्स इज कॉल्ड द प्रेशर फोर्स P इंटू डी. यू अंडरस्टैंड? जहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हैं? अब देखिए, अब दिस इज योर टाउ डी ए. इसको ऐसे लिखो. So now we got two forces here. So let us resolve these two forces tau dA and PdA in two components. अब इन दोनों फोर्सेस को हम क्या करते हैं? दो कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं. फर्स्ट हम रिजॉल्व कर देते हैं आपका tau dA. This is the force, right? So let us resolve this force in two components. टू कंपोनेंट्स क्या होंगे? एक आपका होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक आपका होगा वर्टिकल कंपोनेंट. दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. दिस इफ दिस एंगल इज थीटा, तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? टाउ डी ए cos थीटा, एंड दिस कंपोनेंट दैट इज द वर्टिकल कंपोनेंट. दिस इज योर टाउ डी ए sin theta. You understand? Tau dA cos theta and tau dA sin theta. सेकंड हम रिजॉल्व कर लेते हैं आपका प्रेशर फोर्स को. तो प्रेशर फोर्स कैसे था आपका? ये जस्ट लाइक दिस. राइट? दिस इज योर प्रेशर फोर्स एंड दिस कैन बी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स. इसका जे आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, आप इसका वर्टिकल कंपोनेंट है. अब जस्ट देखिए कि हमारा एंगल थीटा कहाँ पे आएगा. यू अंडरस्टैंड? इस पे आ जाइए. दिस इज योर इंक्लाइन प्लेन एंड प्रेशर फोर्स इज एक्टिंग ऑन द प्लेन, इंक्लाइन प्लेन, राइट? दिस इंक्लाइंड प्लेन or inclined component that makes an angle theta with the horizontal. If the inclined plane will make an angle theta with the horizontal, its vertical plane, its normal plane, perpendicular plane will makes an angle theta with the vertical plane. ये याद रखना है. ये पहले बहुत there are so many times I told you. अब देखिए ये PDA क्या है? दिस इज द परपेंडिकुलर, दिस इज नॉर्मल ऑन दिस प्लेन, इंक्लाइन प्लेन. तो इसका जो वर्टिकल एंगल कंपोनेंट होगा दैट विल मेक एन एंगल थीटा. वर्टिकल कंपोनेंट और इसके बीच में जो नॉर्मल प्लेन है इसके बीच में जो एंगल होगा ये आपका एंगल होगा थीटा. यू अंडरस्टैंड दिस? ये आपका एंगल क्या होगा? सो यू कैन से दैट PDA makes an angle theta with the vertical plane, not with the horizontal. You understand this point? What is the point? This is the normal plane, inclined plane, and this is making an angle theta with the horizontal. इसका जो vertical plane होगा, किसका? Inclined plane का. जो vertical plane होगा, जो
नॉर्मल प्लेन होगा, आप कह सकते हैं, दैट मेक्स एन एंगल थीटा विद अ वर्टिकल प्लेन। तो ये देखिए PDA, दिस इज नॉर्मल टू दिस इंक्लाइन प्लेन, और इसका जो वर्टिकल प्लेन होगा ये PDA मेक्स एन एंगल थीटा विद अ वर्टिकल प्लेन। अब जहां पे आपका एंगल थीटा होगा वहां पे आपका क्या होगा, कास होगा, यू अंडरस्टैंड। तो ये आपका आ जाएगा PDA कास थीटा, और ये आपका आ जाएगा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, दिस इज PDA साइन थीटा, यू अंडरस्टैंड। ये फिगर 1 एंड फिगर 2, PDA cos theta and PDA sin theta। अब जहां से दोनों फिगर्स में देखिए, अब जहां से देखिए द कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, द कंपोनेंट ऑफ द shear force, द कंपोनेंट ऑफ shear force, shear force क्या है, टाउ डी है, along fluid flow, along fluid flow direction, this is equal to tau into dA cos theta, right? Tau into dA into cos theta, right? Tau dA into cos theta पहला। अब दूसरा ले लीजिए, इसका ले लीजिए आप, द कंपोनेंट अब देखिए द कंपोनेंट ऑफ प्रेशर फोर्स, द कंपोनेंट ऑफ प्रेशर फोर्स along the fluid flow direction, pressure force along the fluid flow direction, that is PDA sin theta, you understand। जहां से देखिए this is along the fluid flow direction, that is PDA sin theta, right? So these components of the small area dA, right? So on the complete surface of the body की बात करें हम, तो on the complete surface, क्योंकि ये कंपोनेंट थे, this is on the small area, this is ये एरिया जो लिया था dA, on the complete surface, the complete surface of the body or object, तो shear force वाला क्या कंपोनेंट आएगा, दैट इज shear force का कंपोनेंट क्या आएगा, shear force along the fluid flow direction, along सो ऑन द कंप्लीट सरफेस ऑफ द बॉडी, अगर कंप्लीट सरफेस ऑफ बॉडी के लिए, ये तो एक एलिमेंट्स के ऊपर शेयर फोर्स अलॉन्ग, थोड़ा अलॉन्ग एक्स डायरेक्शन कर लो या फ्लूइड फ्लो डायरेक्शन, एक ही चीज़ है,
तो कंप्लीट बॉडी के ऊपर हमें करना होगा तो इसे हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, राइट, दैट इज टाउ डी ए cos theta, you understand? और component of the pressure force along the fluid flow direction, जैसी तरीके से component of pressure force complete body, I am just taking, पहले क्या था, this is on the small element and now this is on the complete body. Pressure force along fluid flow direction means x direction along fluid flow direction, and this is equal to, क्या करें, इंटीग्रेट करें पी डी ए साइन, यू अंडरस्टैंड? तो ये इंटीग्रेट कर ले पी डी ए साइन थीटा. Right? Right? इसको मिटा दीजिए. Now you see here, अब आपको यहाँ पे दो कंपोनेंट मिले कंप्लीट सरफेस में, दैट इज अ शेयर फोर्स अलोंग द फ्लूइड फ्लो डायरेक्शन. अब ये जो शेयर फोर्स आपका फ्लूइड फ्लो डायरेक्शन है, इसे हम क्या कहते हैं, स्किन फ्रिक्शन ड्रैग, राइट? तो स्किन फ्रिक्शन ड्रैग क्या होगा, स्किन फ्रिक्शन ड्रैग skin friction drag, the total shear force drag, that is क्या होगा, the total, जो बॉडी के ऊपर आपका देखिए टोटल shear force drag, इसको हम बोलते हैं स्किन फ्रिक्शन ड्रैग, टोटल शेयर फोर्स ड्रैग ऑन द बॉडी. जैसे मैंने आपको बताया कि बॉडी के ऊपर दो टाइप के फोर्सेस एक्ट करेंगी व्हेन वी कीप द बॉडी वर्टिकल और हेल्ड वर्टिकल इन द फ्लूइड फ्लो डायरेक्शन. किसी बॉडी को हम फ्लूइड फ्लो डायरेक्शन में क्या रखते हैं तो उस वक्त दो फोर्सेस उसमें एक्ट करेंगी. एक तो होगी टोटल शेयर फोर्स. ये जो टोटल शेयर फोर्स होगी इसको हम कहते हैं, इज नोन एज स्किन फ्रिक्शन ड्रैग. इसको क्या कहते हैं, स्किन फ्रिक्शन ड्रैग. टोटल शेयर फोर्स अलॉन्ग कर लो, अलॉन्ग फ्लूइड फ्लो, along fluid flow direction, shear force along fluid flow direction, ये याद रखना है. स्किन फ्रैक्शन क्या है, टोटल shear force along fluid flow direction. This is your skin friction drag, right? And this is equal to tau into dA into cos theta. You understand? This is equal to tau into dA cos theta integration. So this is your, you can say that is known as skin friction drag. अब सेकंड देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं. प्रेशर ड्रैग और फॉर्म ड्रैग.
अब प्रेशर ड्रैग क्या है? प्रेशर ड्रैग आर फॉर्म प्रेशर ड्रैग आर फॉर्म ड्रैग। ये होगा आपका प्रेशर फोर्स अलोंग द फ्लूइड फ्लो डायरेक्शन। तो इसको हम स्किन फ्रिक्शन को हम ये डिनोट करेंगे FDS से। प्रेशर ड्रैग और फॉर्म ड्रैग, ये क्या होगा? द टोटल प्रेशर फोर्स, द टोटल प्रेशर फोर्स along the fluid flow, the total pressure flow force along the fluid flow direction। pressure drag और form drag क्या है? total pressure flow force along the fluid फ्लो डायरेक्शन। तो क्या था ये अभी फाइंड आउट किया हमने। टोटल प्रेशर फोर्स क्या था? दिस इज इक्वल टू PdA साइन थीटा, राइट? दैट इज PdA साइन थीटा, और इसको हम किससे डिनोट करते हैं? FdP। तो प्रेशर, टोटल प्रेशर फोर्स जो आपका फ्लूइड फ्लो डायरेक्शन के ऊपर होगा, वो जो टोटल प्रेशर फोर्स होगी, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रेशर ड्रैग। उससे क्या मिलेगा? प्रेशर ड्रैग और फॉर्म ड्रैग। समझाया आपको? हाउ वी विल फाइंड द प्रेशर ड्रैग और द फॉर्म ड्रैग मीन्स द टोटल प्रेशर फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द बॉडी इन द फ्लूइड फ्लो डायरेक्शन, and that drag which is formed by that force in the fluid flow direction is called the pressure drag or the form drag, right? You understand that? Means total pressure force acting on the body in the fluid flow direction। हमने प्रेशर का भी क्या थे? दो कंपोनेंट्स थे, वन इज द फ्लूइड फ्लो डायरेक्शन एंड वन इज द नॉर्मल टू द डायरेक्शन। ये जो आपका स्किन फ्रिक्शन ट्रैक प्लस प्रेशर ड्रैग और फॉर्म ड्रैग, इन दोनों केसेस में क्या था कि आपका शेयर फोर्स जैसे है, दैट वी हैव कंसिडर्ड, दैट वी हैव टेकन इन द फ्लूइड फ्लो डायरेक्शन, वेयर एज द टोटल प्रेशर फोर्स, बिकॉज एक बॉडी के ऊपर फ्लूइड जो है वो टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस एक्ट करती हैं फ्लूइड के द्वारा एक बॉडी के ऊपर। एक आपका शेयर फोर्स एक्ट करता है और दूसरा कौन सी फोर्स एक्ट करती है? प्रेशर फोर्स एक्ट करती है। यू अंडरस्टैंड? तो शेयर फोर्स का जो कंपोनेंट है अलोंग फ्लूइड फ्लो डायरेक्शन, दैट विल गिव यू द स्किन फ्रिक्शन ड्रैग। उससे हमें क्या मिलेगा? स्किन फ्रिक्शन ड्रैग। एंड द प्रेशर फोर्स का जो एक कंपोनेंट होगा अलोंग द फ्लूइड फ्लो डायरेक्शन, दैट विल गिव द प्रेशर ड्रैग और द फॉर्म ड्रैग। यू अंडरस्टैंड? जहां तक चीजें क्लियर हैं। अब इसका मतलब है कि टोटल ड्रैग अब कितना हो गया? यू अंडरस्टैंड? टोटल ड्रैग फोर्स ऑन द बॉडी कितना होगा? टोटल ड्रैग फोर्स ऑन द, अगर मैं बॉडी के ऊपर जो आपकी बॉडी है उसके ऊपर टोटल ड्रैग कितना होगा? व्हाट इज द टोटल ड्रैग? द बॉडी विच इज हेल्ड स्टेशनरी इन द स्ट्रीम ऑफ फ्लो, राइट? तो इसका टोटल ड्रैग कितना होगा? जस्ट सी हियर, टोटल ड्रैग होगा आपका, दैट इज FDS plus FdP. You understand? That is the skin friction drag plus pressure drag, or you can say this is equal to skin friction tau dA cos theta
plus tau, plus p dA sin theta. You understand? So this is the equation number 1. क्या अगर हमें एक ड्रैग को फाइंड आउट करना है बॉडी में, तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दैट इज टाउ डी ए cos थीटा एंड टाउ डी ए साइन थीटा. So this is the total drag or drag force, means forces which are acting in the fluid flow direction, right? Component of the forces acting on the body to the parallel to the relative velocity distribution also, right? So drag force means component of the forces on the body in the fluid flow direction, उससे हमें ड्रैग फोर्स मिलेगा. आर कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस ऑफ द बॉडी इन द फोर्सेस पैरेलल टू द रिलेटिव वेलोसिटी डायरेक्शन, जो इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी का उसकी डायरेक्शन के जो पैरेलल फोर्सेस एक्ट करेंगी, उससे हमें डायरेक्ट फोर्स मिलेगा. यू अंडरस्टैंड दिस? एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1. हम इससे ड्रैग फोर्स फाइंड आउट कर लेते हैं. अब देखिए, इफ वी विल सी दैट इक्वेशन नंबर 1, that is the pressure distribution and the shear stress distribution. You understand? So this is the equation for finding, this is the expression for finding the total drag force on the body. जहाँ से लिखेंगे हम इसको. So you can say that the drag force can be calculated by using this expression, that is tau dA cos theta plus p dA sin theta, right? This expression number 1. But if the pressure distribution and the shear stress distribution on the surface of the body are given, are known. You understand? प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता होना चाहिए कि सरफेस ऑफ द बॉडी के ऊपर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, shear स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, तभी हम इस इक्वेशन को जहाँ पे या इस एक्सप्रेशन को अप्लाई करके वी कैन कैलकुलेट द ड्रैग फोर्स. यू अंडरस्टैंड? बट दिस इज वेरी डिफिकल्ट, यू कैन से, टू ऑब्टेन the shear stress distribution and pressure distribution on the surface of the body by experimentally or theoretically. You understand? तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये बड़ा डिफ़िकल्ट है कि shear stress distribution को या pressure distribution आप इसको हम obtain करें on the surface of the body. This is very difficult. So it means that it is difficult to apply this force. It is difficult to apply this equation or expression for calculating the drag force. You understand this? So उसके लिए by carrying out the different type of the experiments mathematically by some numerical techniques, तो हमने ड्रैग फोर्स और लिफ्ट फोर्स का वी हैव डेवलप्ड द फार्मूला, एंड बाय यूजिंग दैट फार्मूला वी कैन कैलकुलेट द ड्रैग फोर्स एंड द लिफ्ट फोर्स. यू अंडरस्टैंड? तो एक्सपेरिमेंटली हमने क्या किया, ये एफ डी, ये आपका आ गया टोटल ड्रैग फोर्स. यू अंडरस्टैंड दिस? तो इसका फार्मूला हमने अप्लाई किया, दैट इज 1/2 AF into U infinite square into CD. You understand? This formula we are applying for the drag force
when a body is moving in the fluid, or fluid is moving around the body, surrounding the body, the density of the fluid, that is rho, this is given, density of the fluid is given, that is rho, density भी तो लिखना था यहाँ, so density of the fluid, rho into AF, right, 1/2 rho into AF into U infinite square CD, where CD is the coefficient of drag force AF. This is the frontal area that we have taken, projection area normal to the moving of the flow direction. U infinite, this is the stream velocity of the moving fluid, infinite stream velocity of the moving fluid, and rho is the density, mass density of the moving fluid. You understand? So this is the formula for the drag force. Likewise, the same case will happen in the lift force also. तो उसमें जो फार्मूला इसका होगा, that is FL, that is half into rho into AP. जहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, AP मीन्स हम ये वाला एरिया लेंगे, द एरिया प्रोजेक्शन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द फ्लो डायरेक्शन, दैट एरिया वी विल कंसिडर. यू अंडरस्टैंड? दैट इज द प्लेन फॉर्म एरिया, दैट इज द प्लेन फॉर्म एरिया, प्रोजेक्शन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द फ्लो डायरेक्शन, दैट एरिया वी विल कंसिडर. Rest everything is same. U infinite, that the infinite velocity of the stream of the flow, and जो जहाँ पे ले गए हम, that is CL, this is the coefficient of lift. So these are the two very important formula जिनके ऊपर हम drag force और lift force को हम calculate करते हैं. You understand? अब जैसे मैंने आपको बताया कि वाई आई एम नॉट यूजिंग दिस एक्सप्रेशन जो मैंने अभी ड्राइव किया फॉर द ड्रैग फोर्स, लाइकवाइज आई विल कैलकुलेट द ड्राइव द इक्वेशन फॉर द लिफ्ट फोर्स आल्सो. तो ये जो ड्रैग फोर्स के लिए मैंने अभी तो ड्रैग फोर्स का अप्लाई किया था, ये एक्सप्रेशन नंबर 1 जो ड्रैग फोर्स का था, दैट वी कैन कैलकुलेट. दिस इज द फार्मूला फॉर द टोटल ड्रैग फोर्स, टाउ डी ए cos थीटा प्लस पी डी ए साइन थीटा, इंटीग्रेशन फ्रॉम complete area. You understand? Why we are not using this? Because it is very difficult for us to obtain the pressure distribution and shear stress distribution over the surface of the body. Even experimentally, theoretically, it is very difficult to obtain. तो जब आपका pressure distribution ही आपको obtain नहीं कर सकते आप, because the P is the pressure distribution, tau is the shear stress distribution. तो जब आपको P and tau की value very difficult to obtain by experimentally or theoretically, so in that case हमने एक by using the different type of the numerical techniques, mathematics and some experiments, these two formulas we have calculated. This is you can say empirical formulas for calculating the drag force, and this is for the lift force. You understand? तो total drag तो हमने इस तरीके से निकाल लिया. अब देखिए टोटल लिफ्ट फोर्स हम कैसे निकालेंगे इस एक्सप्रेशन में. ये जो आपका एक्सप्रेशन था, इस केस में टोटल लिफ्ट फोर्स, हाउ वी विल कैलकुलेट द टोटल लिफ्ट फोर्स. यू अंडरस्टैंड? ये ड्रा कर लेते हैं डायग्राम. एक तो मैंने लिया था, ये आपका था टाउ डी ए, टाउ डी ए. यू अंडरस्टैंड? दिस इज द shear force. This is resolved in two components. इनको दो कंपोनेंट में मैंने रिजॉल्व किया था. दिस इज टाउ डी ए कास थीटा, और दूसरा कंपोनेंट ये था, दिस इज टाउ डी ए
साइन थीटा. यू अंडरस्टैंड? दिस इज योर फिगर नंबर 1. तो जो इसमें प्रेशर फोर्स था उसको भी हम दो कंपोनेंट में हमने किया था. राइट. दिस इज PdA. राइट. एक कंपोनेंट आपका J हो जाएगा और एक कंपोनेंट आपका J था, दैट इज PdA cos theta. You understand? Because angle theta is with the vertical, that is PdA cos theta, and this is PdA sin theta. These two forces we have resolved like this. ये previously मैंने आपको बताया यहाँ पे. अब हमें फाइंड आउट करना है लिफ्ट फोर्स कंपोनेंट. तो लिफ्ट फोर्स, व्हाट इज द लिफ्ट फोर्स क्या होगा? The components which are normal to the तो लिफ्ट फोर्स में क्या है इसका डेफिनेशन? दैट इज द कंपोनेंट ऑफ the forces acting on the body normal to the fluid flow direction or forces acting on the body normal to the relative velocities. Right. So component of the force is acting on the body normal to the relative velocity direction. तो ये भी एक डेफिनेशन है. दूसरा है वही कंपोनेंट ऑफ the forces acting on the body normal to the relative velocity direction. You understand? Component of the, तो दिस इज कॉल्ड द लिफ्ट फोर्स. लिफ्ट फोर्स में क्या होगा कि जो फोर्सेस के कंपोनेंट होंगे वो कौन से कंपोनेंट हम कंसिडर करेंगे? कंपोनेंट्स विच आर नॉर्मल टू द फ्लूइड फ्लो डायरेक्शन. ड्रैग फोर्स में वी हैव कंसिडर दोज कंपोनेंट्स विच आर अलोंग द फ्लूइड फ्लो डायरेक्शन. और जहां पे लिफ्ट फोर्स में हम जो कंपोनेंट ऑफ फोर्सेस लेंगे that is along the normal fluid flow direction. You understand? अब देखिए, total number of forces are acting on the body when the body is held stationary in the moving fluid, or you can say fluid is stationary, the body is moving. In that case, how many forces are acting on the body by the fluid? Two forces are acting on the body by the fluid. You understand? दो forces कौन सी थी? That is the shear force and that is the normal force. You understand? Of shear force, we have resolved the shear forces in two components. We have resolved the normal forces in two components, right? जो आपका हॉरिजॉन्टल नहीं, जो कंपोनेंट आपका अलोंग फ्लूइड फ्लो डायरेक्शन था, चाहे वो कंपोनेंट आपका शियर फोर्स का था, चाहे वो कंपोनेंट आपका प्रेशर फोर्स का था,
इन दोनों कंपोनेंट का जो सम है या टोटल जो इनका फोर्स डेवलप हुआ, वो टोटल फोर्स इन कंपोनेंट की वजह से जो फोर्स डेवलप हुआ, दैट इज अवर ड्रैग फोर्स, यू अंडरस्टैंड। एंड द सेकंड कंपोनेंट इन बोथ द केसेस यू हैव सीन दैट शियर फोर्स का भी एक नॉर्मल कंपोनेंट है और प्रेशर फोर्स का भी एक नॉर्मल कंपोनेंट है, राइट। इन दो कंपोनेंट से जो फोर्स आपका डेवलप होगा, टोटल फोर्स जो डेवलप होगा, दैट इज योर लिफ्ट फोर्स, यू अंडरस्टैंड। तो आपका कंपोनेंट along the shear force component normal to the fluid flow direction क्या होगा? Component of shear force अब इसमें देखिए, कंपोनेंट ऑफ shear force normal to the fluid flow direction. So what is the component normal to the fluid flow direction? That is tau dA sin theta. This is tau dA sin theta, you understand। सेकेंड प्रेशर जो कंपोनेंट है प्रेशर फोर्स का, कंपोनेंट ऑफ प्रेशर फोर्स कंपोनेंट ऑफ प्रेशर फोर्स नॉर्मल to the fluid flow direction normal to the fluid flow direction। वो कौन सा कंपोनेंट होगा? दिस कंपोनेंट नॉर्मल है बट इट्स डायरेक्शन इज इन द डाउनवर्ड, राइट। तो ये होगा माइनस, नेगेटिव साइन लगेगा, माइनस पी डी ए cos थीटा, यू अंडरस्टैंड। You understand this? So total आपका क्या होगा? You can say तो लिफ्ट, टोटल लिफ्ट फोर्स क्या होगा? That is the sum of this component tau dA sin theta plus minus PDA cos theta। तो टोटल लिफ्ट कितना होगा? टोटल लिफ्ट फोर्स, टोटल लिफ्ट फोर्स टोटल लिफ्ट फोर्स दैट इज FL, इनको आप सम कर लीजिए, दैट इज टाउ dA sin थीटा प्लस, बट ये साइन क्या है? माइनस है, तो ये माइनस आ जाएगा PDA cos theta। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द लिफ्ट फोर्स। ये आपका लिफ्ट फोर्स का क्या है? एक्सप्रेशन है। आप जहां पर भी सेम कंडीशंस अराइज होंगी, इफ वी आर हैविंग द वैल्यू ऑफ shear stress distribution and pressure distribution on the surface of the body, then we can use this formula and calculate the lift force, likewise drag force also. But as I told you that it is very difficult to obtain the pressure distribution and shear stress distribution on the surface of the body by experimentally भी बहुत मुश्किल है, theoretically भी it is very difficult to obtain। तो इस चीज़ को सिंप्लीफाई करने के लिए एक न्यूमेरिकल फार्मूला डेवलप किया गया
by using the different numerical techniques mathematically or you can say by experimentally, जो फार्मूला यूज किया गया वो आपको बताया था मैंने, दैट इज एफ एल, दिस इज इक्वल टू व्हाट इज द लिफ्ट फोर्स, दिस इज इक्वल टू 1/2 हाफ, दैट इज लिफ्ट फोर्स 1/2 rho into AF, नॉट AF, दिस इज, इस केस में AP लगेगा, राइट। कौन सा एरिया हम लेंगे? द एरिया विच इज पैरेलल टू द फ्लो ऑफ सरफेस, राइट। तो हम एरिया हम लेंगे फॉर्म ड्रैग एरिया, प्लेन फॉर्म एरिया, या तो हम इसमें प्लेन फॉर्म एरिया लेंगे, दैट इज AP, द प्रोजेक्शन ऑफ द प्लेन पैरेलल टू द फ्लो डायरेक्शन, वो हम एरिया लेंगे 1/2 रो AP इंटू CL लेंगे, दिस इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ लिफ्ट फोर्स, यू अंडरस्टैंड। सो दीज टू फार्मूलाज आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट हमने जो इसका इक्वेशंस थी किस तरीके से ड्राइव किया, इसमें जो कंप्लीट कंसेप्ट था कि लिफ्ट फोर्स कैसे प्रोड्यूस होगी और ड्रैग फोर्स कैसे प्रोड्यूस होगी, इसको आप अपने माइंड में रखिए कि जब भी कोई बॉडी फ्लूइड में समर्स है, चाहे स्टेशनरी फ्लूइड में समर्स है, जब बॉडी मूव कर रही है तो फ्लूइड जो है आपका स्टेशनरी है, दोनों मूव कर रहे हैं, बॉडी भी मूव कर रही है, फ्लूइड भी मूव कर रहा है। सो इन ऑल द केसेस फ्लूइड विल एक्सर्ट द फोर्सेस ऑन द बॉडी। इन सारी कंडीशंस में क्या होगा कि फ्लूइड जो है बॉडी के ऊपर फोर्सेस एक्सर्ट करेगा। और देयर आर टू टाइप्स ऑफ द फोर्सेस, बेसिकली व्हाट यू हैव टू रिमेंबर that there are the two types of the forces exerted by the fluid on the body, and these two types of the forces, one is the shear force and second one is the pressure force, you understand। तो shear force का जो इन forces के जो component हम इसको रिजॉल्व करते हैं दोनों forces को, और इनके जो component आपके x directions में होंगे, इन the flow directions में होंगे, उनसे हमें ड्रैग टोटल ड्रैग फोर्स मिलेगा। और जो कंपोनेंट्स इन दोनों फोर्सेस के आपके नॉर्मल डायरेक्शंस में होंगे उससे हमें क्या मिलेगा? लिफ्ट फोर्स मिलेगा, राइट। दिस इज द बेसिक थिंग टू अंडरस्टैंड। रहा ये फार्मूले जो एंड में दिए, बिकॉज ये फार्मूला यूज करना जो एक्सप्रेशन फर्स्ट में दिया और एक्सप्रेशन सेकंड में दिया, ये फार्मूले यूज करना इज वेरी डिफिकल्ट। आइदर वी आर हैविंग or we are known with the shear stress distribution and the pressure distribution on the surface of the body। अगर हमें shear stress distribution और pressure distribution on the surface of the body हमें मालूम है, given है, दिया गया है, then we can use these formula for calculating the lift force and the second formula which I have given already there for calculating the drag force। But practically these things are not given to us and moreover it is very difficult for us to obtain these values। तो उसके लिए जो न्यूमेरिकल फार्मूला दिया आपको, जो आपका FD था, ड्रैग फोर्स का फार्मूला था, दैट इज 1/2 रो इज द मास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड। AP जहाँ पे AP लिया वह AF, वहाँ पे हम कौन सा लेंगे? फ्रंटल एरिया लेंगे, द एरिया विच इज नॉर्मल टू द मूविंग फ्लूइड। एरिया ऑफ द बॉडी जो मूविंग फ्लूइड की डायरेक्शन के क्या होगा? नॉर्मल होगा, वो हम प्रोजेक्शन एरिया उसका लेंगे, दैट इज AF। एंड U इन्फिनाइट दैट इज द स्ट्रीम वेलोसिटी, इन्फिनाइट स्ट्रीम वेलोसिटी, राइट। एंड CD अगर आपका ड्रैग फोर्स निकालना है, दैट इज द कोफिशिएंट ऑफ द ड्रैग। और अगर आपको लिफ्ट फोर्स निकालना है तो इसका एम्पिरिकल फार्मूला दिस इज गिवन हियर। तो ये आपका ड्रैग और लिफ्ट का जो कंसेप्ट था, आई थिंक दिस इज
कंप्लीटली अच्छे तरीके से आप सभी को समझ आया होगा। यू अंडरस्टैंड दिस। और इस टॉपिक के बारे में भी, इस टॉपिक का जो सिग्निफिकेंस है, इम्पोर्टेंस है, वो भी समझ आया होगा कि इस टॉपिक का कितना इम्पोर्टेंस है इन आवर इंजीनियरिंग फील्ड में। क्योंकि हम कोई भी एनालिसिस करेंगे डिज़ाइन का, चाहे वो लार्ज आपके ऑब्जेक्ट हों या स्मॉल ऑब्जेक्ट हों जो फ्लूइड में मूव कर रहे हैं और फ्लूइड उनके ऊपर मूव करता है। स्ट्रक्चर एनालिसिस जब हम डिज़ाइन करते हैं बिल्डिंग्स का, ब्रिजेस का और स्ट्रक्चर्स का, इवन आपका शिप है, और देयर आर सो मैनी थिंग्स, एरोप्लेन्स, कार, व्हीकल, एवरीथिंग, ऑटोमोबाइल्स। तो इन सभी के डिज़ाइंस का जब एनालिसिस करते हैं तो हम ये जो आपकी ड्रैग फोर्स और लिफ्ट फोर्स है, इन फोर्सेस को भी हम कंसिडरेशन में लेते हैं। यू अंडरस्टैंड। इनका भी इफेक्ट हमें कंसिडरेशन में लेना पड़ता है। इसलिए ये टॉपिक आपका इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड मोर ओवर ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बिकॉज डे टू डे लाइफ में वी एनकाउंटर्ड विद नंबर ऑफ सच टाइप ऑफ नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स इन अवर लाइफ। जितना भी इफेक्ट है, क्रिकेट बॉल में आप बॉल को स्विंग करते हैं, एक बॉलर आता है बॉल को थ्रो करता है, बॉल स्विंग होती है। अब स्विंग कैसे होती है उसका भी इफेक्ट जो है ड्रैग फोर्स का इफेक्ट है। यू अंडरस्टैंड दैट। गोल्फ हम खेलते हैं, गोल्फ में आपने देखा होगा डॉटेड सरफेस वगैरह होंगे, एरिया रफनेस होगा, जो आपकी बॉल है वहाँ पे, तो वो भी जो आपका है वहाँ पर भी फोर्सेस का इफेक्ट होगा, ड्रैग फोर्सेस का इफेक्ट होगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो टॉपिक है ये हमारी डे टू डे रूटीन की जो चीज़ें हैं उनके बहुत नियर है। दैट इज़ वेरी नियर टू अस। इसलिए ये चीज़ें इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देती हैं अगर हम इस टॉपिक को इस पॉइंट ऑफ व्यू से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। जहाँ तक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू का है तो ये दो फार्मूले हैं, न्यूमेरिकल्स हैं और कुछ कंसेप्ट हैं, वो कर लीजिए तो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। लेकिन अगर इसमें टॉपिक में बहुत डिटेल है, बहुत टॉपिक है, इसमें बहुत से आगे छोटे छोटे टॉपिक्स आएंगे जिसके ऊपर हम लेक्चर्स बनाएंगे। सो आई विल से कि सारे इसको ध्यान से देखें, राइट। अभी इसके साथ एक और चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए, अगर थिन प्लेट, कोई हम बड़ी एक स्मॉल सी प्लेट लेते हैं, दैट इज थिन प्लेट इमर्स्ड इन द फ्लूइड पैरेलल टू द फ्लूइड फ्लो डायरेक्शन। हेडिंग क्या बनता है? दैट इज, देखिए, अगर थिन प्लेट इमर्स्ड in the fluid, immersed in the fluid parallel to the direction of flow, parallel to the direction ऑफ। अब देखिए इस केस में क्या होगा। सपोज ये आपकी प्लेट है, एक हम बड़ी थिन प्लेट लेते हैं, दिस इज योर थिन प्लेट, राइट। तो ये थिन प्लेट दैट इज इमर्स्ड इन द फ्लूइड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। तो आपका ये जहाँ पे फ्लूइड है, राइट,
u infinite. So this plate that is immersed in the fluid flow direction. मीन्स ये आपका this is your thin plate, right? This thin plate that is immersed in the fluid flow direction. अब देखिए यहाँ पे when this layer that comes in contact with the when the fluid layer that comes in contact with the किसके साथ, थिन प्लेट के साथ, तो जो उसका वेलोसिटी होगा एज द प्लेट दैट इज इन रेस्ट, तो जो वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड लेयर है ये आपका क्या होगा, दैट इज स्टिक टू इट, दैट इज एडेयर टू इट एंड नो स्लिप कंडीशन प्रोड्यूस होगी, तो जहाँ पे वेलोसिटी आपकी जीरो होगी। जब उसके साथ जो एडजॉइनिंग लेयर होगी तो ये यू इन्फिनाइट वेलोसिटी से जहाँ से आ रही है, बट जे लेयर इसकी वेलोसिटी को क्या करेगी, रिटार्ड करेगी, फर्दर रिटार्ड करेगी, जैसे बाउंड्री लेयर कंडीशंस का, इसके बारे में मैं डिटेल नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि इस केस में आपका शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा बिकॉज देयर इज ए वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये क्या होगा, वेलोसिटी ग्रेडियंट, एक स्मॉल एरिया विद इन द विजिनिटी ऑफ दिस थिन प्लेट, एक स्मॉल एरिया जो होगा इसकी विजिनिटी थिन प्लेट की, वहाँ पे जो वेलोसिटी आपकी है दैट विल वेरी फ्रॉम जीरो टू स्ट्रीम वेलोसिटी, जिसको हम बाउंड्री लेयर कंडीशंस भी कहते हैं, दैट वी विल डिस्कस लेटर। तो इस केस में क्या होगा कि वेलोसिटी ग्रेडियंट इस केस में ज़्यादा होगा, लार्ज होगा, और जहाँ पे क्या होगा आपका शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा। बात समझ आई, कौन सी स्ट्रेस यहाँ पे प्रोड्यूस होगी, शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी, राइट। तो शेयर स्ट्रेस तो होगी। अब देखिए थिन प्लेट को हमने इमर्स किया तो हमें ड्रैग फोर्स फाइंड आउट करना है। सपोज हमें क्या फाइंड आउट करना है, दैट इज द ड्रैग फोर्स। अब देखिए ड्रैग फोर्स इसमें क्या है, जो ड्रैग फोर्स है आपका दैट इज एफ डी, किसके बराबर है, टाउ डी ए कास थीटा प्लस पी डी ए साइन थीटा, यही है इंटीग्रेशन दैट इज टाउ डी ए कास थीटा प्लस टाउ डी ए साइन थीटा, यही जैसे मैंने बताया कि जहाँ पे शेयर स्ट्रेस ही डेवलप होगी, यू अंडरस्टैंड दिस। तो ये आपका है टोटल एफ डी, एफ डी किसके बराबर है, ड्रैग फोर्स, दिस इज इक्वल टू टाउ डी ए कास थीटा प्लस टाउ डी ए साइन थीटा। अब देखिए मैथमेटिकली देखिए, दिस प्लेट इज इमर्स्ड इन द लिक्विड पैरेलल टू द फ्लूइड फ्लो डायरेक्शन। फ्लूइड फ्लो डायरेक्शन के जे प्लेट क्या है, पैरेलल है। इसका मतलब जो आपका एंगल थीटा है, या तो ये 0 डिग्री है और 180 डिग्री, यू अंडरस्टैंड। जब दिस प्लेट दैट इज पैरेलल टू द फ्लूइड फ्लो डायरेक्शन, इट मीन्स दैट द एंगल थीटा बिटवीन द फ्लूइड flow direction and the plate that is equal to 0 degree or 190 degree,
अब नाउ दीज फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन द प्लेट, टाउ डी ए cos थीटा, शेयर फोर्स जो है वो क्या कंपोनेंट है इसका, टाउ डी ए cos थीटा, और जो प्रेशर फोर्स है टाउ डी ए पी साइन नॉट पी डी ए साइन थीटा, दैट इज पी डी ए साइन थीटा, नॉट टाउ डी ए, सॉरी, दैट इज पी डी ए साइन थीटा, राइट. So angle theta is 90 degree, right? Because angle theta जो प्लेट फ्लूइड फ्लो डायरेक्शंस के साथ बनाता है, जहाँ तो वो 0 डिग्री होगा, जहाँ वो आपका 190 डिग्री होगा. तो इस केस में देखिए, अगर मैथमेटिकली हम इसको प्रूव कर सकते हैं, मैथमेटिकली देखिए, टाउ डी ए दैट इज cos 0 प्लस पी डी ए साइन 0, तो साइन 0 डिग्री मीन्स 0 हो जाएगा, राइट. तो आपका जो फोर्स होगा यहाँ पे, तो इसमें क्या हो गया, इस केस में जो एफ डी है आपका, शेयर फोर्स ड्रैग तो रहेगा, बट आपका प्रेशर ड्रैग जो है, दैट इज प्रेशर ड्रैग, जो आपका प्रेशर ड्रैग है, प्रेशर ड्रैग दिस इज इक्वल टू 0, राइट. प्रेशर ड्रैग क्या था आपका, दैट इज पी डी ए साइन 0, दिस इज योर प्रेशर ड्रैग, लिख लेते हैं. प्रेशर ड्रैग था आपका पी डी ए sin 0 degree, and this is equal to 0. So you can say that if the plate is immersed in the fluid parallel to the direction of the flow, then total drag, इस केस में जो total drag होगा वो किसके बराबर होगा, that is friction drag, skin friction drag or friction drag, right. So you can say total drag, ये याद रखना है, अगर आपका प्लेट पैरेलल इमर्स किया गया है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, देन द टोटल ड्रैग दिस इज इक्वल टू स्किन फ्रिक्शन. यू अंडरस्टैंड, टोटल ड्रैग दिस इज इक्वल टू स्किन फ्रिक्शन ड्रैग. समझ आ गया ये बात. अगर प्लेट आपका पैरेलल है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, देन द टोटल ड्रैग दिस इज इक्वल टू स्किन फ्रिक्शन ड्रैग. अच्छा, सेकंड भी कंडीशंस इसमें ले लेते हैं हम. इफ द थिन प्लेट immersed in the fluid perpendicular to the direction of the flow, अगर थिन प्लेट हम इमर्स करते हैं परपेंडिकुलर इन द, पहले था पैरेलल, अब दूसरा के परपेंडिकुलर अगर हम इसको हम करेंगे, सपोज ये आपका दिस इज द थिन प्लेट.
तो जहाँ पे आपका होगा हाई प्रेशर, ये होगा लो प्रेशर, इसको बोलते हैं हम अपस्ट्रीम, एंड दिस इज द डाउनस्ट्रीम, जहाँ पे इस तरीके से बेक फॉर्मेशंस होंगी, राइट। सो देयर इज द प्रेशर डिफरेंस, देयर इज द हाई प्रेशर, और ये जहाँ पे बेक जो है फॉर्म होगी आपकी, ये बेक है। अब देखिए, जब इस किस्म की कंडीशन होगी कि थिन प्लेट आपने परपेंडिकुलर रखी है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, उस केस में अगर हमें ड्रैग फोर्स को फाइंड आउट करना है, इफ़ वी हैव टू फाइंड द ड्रैग फोर्स। अब देखिए, ड्रैग फोर्स का तो फार्मूला क्या है, व्हाट इज द ड्रैग फोर्स, दैट इज टाउ डी ए cos थीटा प्लस टाउ डी ए साइन पी डी ए साइन थीटा, दैट इज टाउ डी ए cos थीटा प्लस पी डी ए sin theta. You understand? When the plate is held perpendicular to the direction of the flow, it means that अगर प्लेट परपेंडिकुलर है टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, तो थीटा जो एंगल होगा बिटवीन द प्लेट एंड द फ्लो डायरेक्शन, दैट इज 90 डिग्री। यू अंडरस्टैंड? द एंगल दैट इज क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो अगर एंगल 90 डिग्री है तो एफ डी अगर हम यहाँ पे पुट करें तो cos 90 तो आपका क्या बन जाएगा, cos 90, दैट इज 0, और जे आपका sin 91 होता। तो इट मीन्स दैट टोटल ड्रैग इन दिस केस, टोटल जो आपका ड्रैग होगा दैट इज द प्रेशर ड्रैग ऑफ फॉर्म ड्रैग। अगर आप प्लेट को परपेंडिकुलर रखते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो, then the total drag on the plate, that is the pressure drag or the form drag, but the skin friction drag इस केस में क्या होगा, 0 होगा। You understand? Skin friction drag that is equal to 0, and the total drag that is the pressure drag of form drag. अब pressure drag form drag कैसे होगा? If you will see this diagram, you see here that here the fluid is flowing with the high pressure. upstream side fluid का flow क्या होगा, high होगा, और जो आपका डाउन स्ट्रीम है जहाँ पे बेक का फॉर्मेशन होगा, आप देखिए इस तरीके से बेक का फॉर्मेशन होगा, और जब बेक का फॉर्मेशन होगा तो इसका मतलब उसका क्या होगा, प्रेशर रिड्यूस होगा, ये एडिस फॉर्मेशन होगी जहाँ पे, और प्रेशर आपका रिड्यूस होगा। एंड ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस, जहाँ पे हाई प्रेशर है एंड जहाँ पे लो प्रेशर है, ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस यू कैन से दैट देयर इज, or you can say that the total drag is due to the pressure between the upstream and downstream sides of the pipe. You understand? तो total drag जो आपका होगा that is due to the pressure difference, means upstream side and the downstream side, जो आपका pressure difference होगा उससे आपका form होगा drag, and that is called the pressure drag. In case of the skin friction drag is 0. You understand? So these are some very beautiful concept here कि अगर हम थिन प्लेट को इमर्स करते हैं, पैरेलली इमर्स करते हैं, सो एज यू नो, तो जब थिन प्लेट के पैरेलली इमर्स करेंगे तो वहाँ पे आपकी shear स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी एज पर द बाउंड्री कंडीशंस। कैसे होगी, जो फ्लूइड आपका फ्लो करेगा जब विद इन्फिनाइट वेलोसिटी से, फ्री वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड इज यू इन्फिनाइट, और उसका जो स्ट्रीम विच इज इन कॉन्टेक्ट विद द सरफेस ऑफ द प्लेट दैट adheres टू इट, तो उस केस में क्या होगा, नो स्लिप कंडीशन फॉर्म होगी, और जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो क्या होगी, रिड्यूस होगी। जो इन्फिनाइट से वो जो वेलोसिटी, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी थी, वो इसकी वेलोसिटी रिटार्ड होगी। लाइकवाइज जो अदर लेयर है उसकी वेलोसिटी रिटार्ड होगी। इस तरीके से रिटार्डेशन ऑफ द वेलोसिटीज होंगी, और जहाँ पे आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट मिलेगा विद इन द विजिनिटी ऑफ द स्मॉल एरिया ऑफ द सब्जेक्ट, जो वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा, तो आपको पता है कि अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स लॉ
जो आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट होगा तो वो क्या होगा, विस्कोसिटी इज इक्वल टू टाउ इंटू डी ए, राइट। तो क्या होगा, शेयर स्ट्रेस आपका प्रोड्यूस होगा। यू अंडरस्टैंड दैट, क्या होगा, शेयर स्ट्रेस आपका प्रोड्यूस होगा बिकॉज देयर इज ए लार्ज वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो वहाँ पे आपका लार्ज शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। प्रेशर आपका वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं होगा। यू अंडरस्टैंड दैट। उस चीज़ को हमने मैथमेटिकली भी चेक करके देखा, बिकॉज द प्लेट इज केप्ट पैरेलल टू द फ्लूइड फ्लो डायरेक्शन, थीटा एंगल बिटवीन द प्लेट एंड द फ्लूइड फ्लो डायरेक्शन दैट इज 0 डिग्री और 180। तो उसमें हम जब हमने पुट किया तो हमें जो आपका टोटल ड्रैग था, इफ द प्लेट इज इमर्स्ड पैरेलल टू द फ्लूइड फ्लो डायरेक्शन, टोटल ड्रैग दैट इज इक्वल टू द स्किन फ्रिक्शन ड्रैग, pressure drag is 0. And when we kept the plate perpendicular to the direction of the flow, so in that case you can say जो total drag होगा, this is due to the pressure drag because there is a pressure difference between the high stream upstream and downstream pressure difference होगा। तो उसके कारण क्या होगा, प्रेशर ड्रैग फॉर्म होगा, और टोटल ड्रैग दैट इज ड्यू टू द प्रेशर ड्रैग। यू अंडरस्टैंड। सो दीज आर सम ब्यूटीफुल कंसेप्ट ऑफ दिस। इस टॉपिक में जो फर्स्ट टॉपिक था दैट इज इंट्रोडक्शन पार्ट, इस साथ में डेरिवेशंस किया, पूरा कंसेप्ट आपको दिया कि ड्रैग क्या है, लिफ्ट क्या है, इसके किस तरीके से इसका डेरिवेशंस है। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी गुड लेक्चर अप टू हियर। आगे जितने भी इसके लेक्चर होंगे बहुत अच्छे लेक्चर होंगे, तो आई विल सुजेस्ट टू एवरीबॉडी कि लेक्चर आप कोई भी मिस ना करें। हर लेक्चर में आपको नए नए अच्छे अच्छे कंसेप्ट मिलेंगे विच आर वेरी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशंस, राइट। सो आज इतना ही। थैंक यू वेरी मच।